Good morning everyone and very warm welcome to one and all, and welcome back to our channel, that is A Square Classes. And once again we are up to the very next session of your chapter Transport in Plants. Let's see what happens, how do stomata opens, how the functions of stomata are related. Let's see and let's do it. This is the structure of stomata, which is guarded by guard cells. Adjacent to we have, there is a presence of subsidiary cells, and such type of structure is called as what? It is called as stomata. Structure of stomata. सवाल उठता है ये स्टोमाटा ओपन कैसे होता है? मैं तो आपको इसका स्ट्रक्चर पढ़ा चुकी हूँ. What is the mechanism behind this opening or closing of stomata? Stomata opens when there is endoosmosis. बेटा जी ये आपको याद रख लेना. Endo. Stomata closes due to exoosmosis. ठीक है, endoosmosis, exoosmosis. Opening of stomata is valvus compromised with endoosmosis, and closing of stomata is associated with exoosmosis. समझ में आया बेटा? What is endoosmosis? What is exoosmosis? सेल से पानी बाहर जाना is exoosmosis, सेल से पानी अंदर आना is endoosmosis. And I have taught you NR मैम, मैंने ही पढ़ाया बेटा जी ये, ठीक है? चलो, so ये तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा आपको पता है. ये स्टोमाटा है, ये गार्ड सेल्स है, यहाँ पे सब्सिडरी सेल्स है. पानी अगर इस सब्सिडरी सेल से अंदर जाता है तो इट लीड्स टू ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, which leads to ये जो गार्ड सेल है ये स्वेल हो जाते हैं. तो ये कुछ इस तरह से हो जाते हैं और ये स्टोमाटा खुल जाता है बेटा. ये देखो कुछ इस तरह से. क्लियर? एंड सिमिलरली जब ये एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है तो पानी बाहर चला जाता है. एंड देन अगेन दिस शंकन्स, द स्टोमाटा क्लोज. कैन यू सी? आई विल शो यू. Suppose my hands are guard cells and this cavity between these two is what? This is stomata. So when you can see the cavity, when my hands have been folded, when my hands have been swelled, what if I closes my hand? What if my hand has been clapped up? What happened that time? Can you see? Is there any pore? No pore, no stomata. Same thing. अगर ये guard cells से पानी बाहर, guard cells पतले, they become straight, they join, there is no closing of stomata. Now opening of stomata. This is the mechanism, and this type of activity is dealt by what? Beta G, endoosmosis and exoosmosis. ठीक है? So give the very fresh heading for today's session, that is mechanism of opening and closing of stomata. Few important point लिखना बेटा जी और ध्यान से लिखना, ठीक है? So very first important point about mechanism of stomatal opening and closing लिख लेना बेटा जी. Stomatal opening and closing. The first point says that the cause of opening or closing of stomata depends on turgidity of the cell. Depends on change in turgidity of the cell. Either it is turgid, either it is flaccid. Either अगर वो flaccid हुआ तो endoosmosis, अगर वो turgid हुआ तो exoosmosis. So इन सारे condition में क्या होगा? Opening and closing of stomata. फिर आप लोग मुझसे पूछोगे मैम आप ना बहुत ऐसे हो, आपने हमें बताया कि स्टोमाटा ओपन कब होता है? जब एंडोऑस्मोसिस हो. तो ये वाला पॉइंट क्या है? गार्ड सेल्स टेंड्स टू बिकम टर्जिड एंड स्टोमाटा ओपन्स. व्हेन डज दिस टर्जिड सेल्स बिकम? ये टर्जिडिटी कब आती है? जब एंडोऑस्मोसिस होगा ना बेटा जी. जब एंडोऑस्मोसिस होगा तभी तो ये टर्जिडिटी, तभी तो ये जो सेल्स हैं बेटा ये स्वेल अप होंगे और ये जो स्टोमाटा है वो ओपन हो जाएगा. इतना मेरी बात समझते हो? समझे? So when guard cells tends to be appear turgid, stomata opens and it leads to endoosmosis. इतना समझ में आया? क्या एंडोऑस्मोसिस हो गया, सेल टर्जिड हो गया, स्टोमाटा खुल गया. बट कौन से सेल्स बेटा जी? गार्ड सेल्स. सिमिलरली व्हेन गार्ड सेल्स टेंड्स टू बिकम फ्लैसिड, स्टोमाटा क्लोजेस. ये दोनों सेल पचक गए, एकदम से पचक गए, पास आ गए. These two cells, these are the guard cells. Can you see any kind of opening? This is what this shrunken structure of stomata. Can you see any pore? Can you see? And this is what your shrunken guard cells. बेटा ये है तुम्हारे guard cells जो shrunk हो गए ना. ये स्टोमाटा बंद हो गया. This is the reason. What? Flaccid हो गए.
आप लोग बोलोगे फ्लैसिड, बेटा कभी भी गार्ड सेल्स प्लाज्मोलाइज्ड नहीं हो सकते, बिकॉज व्हेन दे कैन बिकम प्लाज्मोलाइज्ड, डू यू थिंक द पोर विल एग्जिस्ट? डू यू थिंक द स्ट्रक्चर विल एग्जिस्ट? नो. सो दे कम्स व्हाट? फ्लैसिड, लिटिल लूज, दे कम्स टू टेंड लिटिल हाइप्रो. सो जब वो हाइप्रोगेट स्ट्रक्चर दिखाते हैं, थोड़ा सा स्क्वीज आउट स्ट्रक्चर दिखाते हैं, दैट टाइम अगेन स्टोमाटा क्लोजेस. See this way, my cells were swelled up, I got stomatal opening. My cells got thickened and condensed, again I cannot, my cells got flaccid, I cannot see any stomatal opening. And this is why they are happening due to, ये flaccid कब होंगे? Due to exoosmosis. Clear? समझ में आया बेटा जी? This is very important concept. आपसे ये तो हो गई बेटा ऑस्मोसिस की बातें. क्या मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं? अब देखना, अगर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल इज हाई, क्यों? यहां देखना, यहां पे मैंने मान लिया बहुत सारे सल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, सल्यूट, बहुत ज्यादा सल्यूट, पिक्चर देखना बेटा, दिखेगी मूवी, ठीक है, बहुत ज्यादा सल्यूट है, समझना. अगर ये बहुत ज्यादा सल्यूट है तो सब्सिडरी सेल्स में क्या होगा? वाटर, ये वाटर जाएगा, क्योंकि वाटर ऑलवेज ट्रांसफर, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जिधर ज्यादा होगा वो उधर से ज्यादा जाएगा दूसरे वाले सेल्स में, बेटा जी समझना. तो अगर यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर में सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ये वाटर अंदर जाएगा, एंड दिस इज व्हाट लीडिंग टू एंडोऑस्मोसिस. समझ में आया बच्चा? दिस इज लीडिंग टू एंडोऑस्मोसिस एंड स्टोमाटा ओपन. सिमिलरली अब यहाँ पे जब पानी अंदर था, जब सेल टर्जिट था, पर यहाँ पे फिर सल्यूट बाहर आ गया, बहुत ज्यादा सल्यूट हुआ, अब क्या करेगा? पानी बाहर आएगा. जब पानी बाहर आएगा बेटा, वाटर कम्स आउट, वी गेट समथिंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर, दिस वे. नो स्टोमेटल पोर्स आर सीन. दिस इज योर सब्सिडरी सेल्स, नो स्टोमाटा एंड स्टोमाटा क्लोजेस. समझ में आया बेटा ये स्ट्रक्चर? एंड कॉन्सेंट्रेशन की बात हुई ना, तो जब अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, cell becomes turgid by absorption of water, and this is what endoosmosis is. समझ में आया बेटा? जब अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा था, पानी बाहर से अंदर गया, समझना बेटा, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड आई एम टेलिंग यू, मेक श्योर आपको क्वेश्चंस इससे दिखेंगे, शीट सॉल्व कर लेना या फिर कहीं भी जाकर के क्वेश्चन सॉल्व करो. सल्यूट का कंसंट्रेशन अंदर बढ़ाना बेटा, पानी क्या करेगा? बाहर से अंदर जाएगा. बट व्हाट इफ सल्यूट कंसंट्रेशन डिक्रीजेस? ये सल्यूट कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा हो गया, तब पानी फिर से बाहर आएगा, and this is what leading to exoosmosis. So this is in the term of osmotic concentration of guard cells. So if what will happen if osmotic concentration, समझना बेटा, osmotic concentration अच्छा है, कम है, मानते हो ना ये चीज? तो पानी कहां से कहां जाएगा? कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब पानी ज्यादा, सो पानी कहां जाएगा? Guard cells will lose water. Guard cells will lose water, and when they will lose water, they will tend to have what? Guard cells will lose water, and they will tend to have what? Exoosmosis and stomata closes. Stomata closes. समझ में आया? एंडोऑस्मोसिस हुआ, स्टोमाटा ओपन्स. एक्सोऑस्मोसिस हुआ, स्टोमाटा क्लोजेस. यहां लिख लेना बेटा, स्टोमाटा ओपन्स, और यहां पे लिखना स्टोमाटा क्लोजेस. लेट मी टेल यू हाउ. I have told you already, osmotic concentration of a guard cell decreases, guard cells will lose water. अब देखना, अगर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, ठीक है, यहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, समझना बच्चा, पानी का कॉन्सेंट्रेशन है, ये वाटर बाहर जाएगा H2O बाहर, तो ये स्टोमाटा को श्रंक हो जाएगा. This is what it said. Guard cell will lose water, exoosmosis will occur, and it will lead to closing of stomata. Clear? समझ में आया? और इसीलिए मैंने आपको इसी दिन के लिए पूरे एक लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, सब्सिडरी सेल्स, पार्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिडर्मल सेल्स, इवन तक बेटा मॉर्फोलॉजी के कुछ स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स तक पढ़ा दिए. अब अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए ना, आई विल कॉट योर नेक एट दैट टाइम ओनली. ठीक है, समझ में आया?
क्लियर है? दिस इज व्हाट द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा. व्हाट इज इट? इट्स द स्टोरी एंड्स ओवर हियर. आपको लग रहा होगा स्टोरी खत्म. नो बेटा, अभी तो देयर इज अ बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. देयर वाज अ साइंटिस्ट, वेरी वेल थ्योरी. वी हैव टू बेसिक थियरीज, Levite theory and modern ABA theory, जिन्होंने ये प्रूफ किया था कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा रन्स थ्रू पोटेशियम पंप रेगुलेटर. कैसे होता है ये पोटेशियम पंप के थ्रू? मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ. मिटा दूँ इसको? मिटा दूँ? आप लोग कहोगे यस मैम, मिटा दीजिए. तो चलो. So there are few important theses which says about opening and closing of stomata. The very first thesis was known as a very first theory. The most accepted theory was the potassium pump theory, or which is also called as Levite theory, given by Levite in the year of 1974. And the another very important theory which is also very accepted modern theory, which is called as modern theory of ABA inhibitor. ये दोनों थियोरी है जिसको हम पढ़ेंगे, how opening and closing of stomata are related. The very first theory which we are going to see today is Levite theory. Clear? Levite theory modern theory कुछ अलग से नहीं है, बस Levite theory को modify करके कहती है. समझ में आया? Clear? समझो. So what happened during daytime? During daytime there is formation of what? Glucose. और जिसको हम लोग ग्लूकोनेट बोलते हैं, ग्लाइकोलेट लिख सकते हो आप लोग. मानते हो ये चीज? थ्रू व्हाट? थ्रू फोटोसिंथेसिस. इतना तो मान गए ना बेटा? ड्यूरिंग द डे टाइम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के इनटेक में विद द हेल्प ऑफ वाटर प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड सिंथेसाइज ग्लूकोज. दिस ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड एंड देन मैलिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. पता है ना? एंड देन दे स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? स्टार्च. एक्सेप्टेड? आप लोग कहोगे यस मैम, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. वी ऑल आर इंटेलिजेंट बिकॉज वी आर एनआर मैम किड्स. ओके, चलो. So when this photosynthesis occur, there is formation of what? Formation of glucose. समझ में आया? और end of the day ये क्या बनाते हैं? ये starch बनाते हैं. Clear? समझ होता है मैलिक एसिड के ब्रेकडाउन से, मैलिक एसिड के फॉर्मेशन से. इतना तो मानते हो ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? आप लोग कहोगे यस मैम मानते हैं. This glucose glycolate is formed. This glycolates get converted into malic acid and this malic acid get converted into starch. पता है इतना? आप लोग कहोगे यस मैम, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. ये तो हो गई बेटा इधर उधर की बातें. ग्लाइकोलेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है? ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड गॉट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस स्टार्च इज फॉर्म? जब ये स्टार्च बन जाता है, इट स्टार्च अगेन डिसोसिएट्स इनटू मैलिक एसिड. मैलिक एसिड में डिसोसिएट बनने के बाद, ब्रेकडाउन होने के बाद, ड्यूरिंग डे टाइम में हो रहा है, ठीक है? इट ब्रेक्स इनटू टू डिफरेंट फॉर्म, जिसको ये जो टूटा उसको हम लोग बोलते हैं मैलेट आयंस, ठीक है? एंड दिस इज व्हाट? हाइड्रोजन आयंस. और ये कहाँ हो रहा है ये सारे रिएक्शंस? मैं बोलूंगी बेटा गार्ड सेल्स में हो रहा है. यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस बहुत ज्यादा फॉर्म होंगे, बट ड्यूरिंग डे टाइम. टाइमिंग याद रखना. डे टाइम में यहाँ पे क्या बना बेटा? हाइड्रोजन आयंस. जब यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयंस हो जाएंगे तो क्या ये हाइड्रोजन आयन बाहर जाएंगे? आप लोग कहोगे यस मैम, बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो ये लोग चले जाएंगे. बट मैं क्या कहती हूँ पता है क्या बच्चा? व्हाट डू आई से? दैट सी there is actually movement or efflux of hydrogen ion outside the cell. कौन सा हाइड्रोजन आयन है? जो मैलिक एसिड को ब्रेक डाउन करके मिला, यानी RCO और H- जो ब्रेक डाउन हो रहे थे हाइड्रोजन आयन, वो हाइड्रोजन आयन इफ्लक्स हो जाएगा. ये हाइड्रोजन आयन बेटा जी. बट व्हाट हैपेंस यू नो, ये हाइड्रोजन आयन अकेला नहीं जाता. व्हेन इट गोस देयर इज एंट्री ऑफ न्यू आयन, जो हम लोग पढ़ते हैं बेटा जी K+ एंड Cl-. ये अंदर जाते हैं. एरो देखना, ये अंदर जाते हैं, ये ही अंदर जाएंगे. समझ में आए? गार्ड सेल्स में. एंड ऑफ द डे दे विल एंटर इनटू गार्ड सेल्स. हाइड्रोक्सिल H+ आयन बाहर आ गए, बट when H+ ions are sent outside, there is influx of potassium ion and chlorine ion. समझ में आया? जब हाइड्रोजन आयन बाहर चला जाता है बेटा, तो फिर उसके बाद पोटेशियम और क्लोरीन आयन उसी के साथ साथ एंटर हो जाते हैं. याद आ रहा होगा को ट्रांसपोर्ट किस दिन के लिए पढ़ाया था? आज के लिए पढ़ाया था.
समझ में आया? एंड मैं आपको बता दूं बेटा जी, ये जो प्रोसेस है ना, ये कोई फ्री में नहीं जाता. देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी. ये जो प्रोसेस जिससे ये अंदर जा रहे हैं ना, ये जो पोटेशियम और क्लोरीन अंदर जाते हैं ना, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी. यहाँ पे एटीपी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है. समझ में आया? सो आपको क्वेश्चंस में ये दिखेगा कि विच काइंड ऑफ प्रोसेस इज दिस व्हेन सोडियम, व्हेन पोटेशियम एंड क्लोरीन वेंट इनसाइड द गार्ड सेल और इनसाइड द सेल्स. यू शुड टुक मार्क दैट इज एक्टिव प्रोसेस. वो एटीपी जनरेटेड होता है. किसी दिन के लिए पढ़ाया था बेटा जी? आज के लिए पढ़ाया था. ठीक है? तो जब अंदर का कॉन्सेंट्रेशन इससे बढ़ गया, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन H+ आ गया, ये अंदर गया, ये बाहर आ गया. ठीक है बेटा? ये बाहर आ गया. ठीक है? What happens then? Osmotic pressure increases of guard cell. मैम प्लीज मैम, ये नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो रहा बेटा? बर्दाश्त समझना. अब देखो, क्या मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से डिनोट करवाया था? आप लोग कहोगे हाँ मैम करवाया था. क्या मैंने इसको आपको कुछ ये फॉर्मूला दिलवाया था? पाई इज इक्वल्स टू ICRT. तो जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा? आप लोग कहोगे यस मैम, यू आर ऑलवेज राइट. एंड यू कैन सी दैट पाई बढ़ा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा. दिस इज समथिंग डिफरेंट. कैन यू डाइजेस्ट इट नाउ? ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस ऑफ गार्ड सेल्स. डाइजेशन हो रही है ना बेटा? आपको ये हो रहा है कि नहीं है? हो रहा है ना डाइजेस्ट? तो वे, बट ये क्यों, व्हाट विल लीड टू? अब जब इसके अंदर, ये सब मिटा दो, अब समझना, इसके अंदर जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया. ठीक है? व्हेन दिस ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस, पानी किधर है बेटा ज्यादा? वेयर द वाटर अमाउंट इज मोर. मैं बोलूंगी ये पानी इधर है ज्यादा, सब्सिडरी सेल्स में है इसके सब्सिडरी सेल्स में वाटर. दिस वाटर गोज इनसाइड and this lead to a process that is called as endoosmosis. Clear? And ये endoosmosis again the history repeats, make the cell turgid. Cell कैसा हो जाता है बेटा? Turgid. And when the cells become turgid, there is opening on बेटा. Then turgidity leads to, turgidity कौन से turgid हुआ बच्चा? Guard cells turgid हो गए, guard cells swell हो गए. Can you see? Osmotic pressure inside the guard cell increases. Why? Because this पोटेशियम एंड क्लोरीन मूव्ड इनसाइड विद द हेल्प ऑफ एटीपी. फिर मैम पोटेशियम तो आयन है, व्हाई डू दिस, हाउ डू दे इंक्रीज द कंसंट्रेशन? आप लोग भूल गए? ये जो मैलेट था, यहाँ का जो मैलेट आयन था, वो इस पोटेशियम से फॉर्म होकर के कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना देगा, दैट इज पोटेशियम मैलेट. अरे इसका कॉन्सेंट्रेशन, पोटेशियम मैलेट का कॉन्सेंट्रेशन सल्यूट में इतना ज्यादा बढ़ा बेटा कि इट लीड्स टू व्हाट? इट लीड्स टू व्हाट? टेल मी फटाक से. इट लीड्स टू इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर. और जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा? जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा इसका, आर मैलेट का, हमने यहाँ पे बनाया है, जो मैलेट आयंस थे वो मैलिक एसिड से ब्रेक हुआ था. ये मैलेट आयन जब ये ब्रेक हुआ था, इस हाइड्रोजन के साथ जाकर के बेटा ये क्या बना देंगे? व्हाट डू दे विल फॉर्म? दे विल फॉर्म potash malate. Potash malate. And this solute increases the osmotic pressure. Concentration increases, pressure increases. When pressure, because can you see osmotic pressure denoted by pi is directly proportional to concentration. And when this increases, this lead to what? Endoosmosis. क्योंकि अंदर का concentration बढ़ा, इसका मतलब पानी का concentration वहाँ कैसा है? कम. एक्सेप्टेड? आप लोग कहोगे यस मैम. तो बेटा जी क्या होगा? फिर ये जो वाटर है वो सब्सिडरी सेल से अंदर जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा, एंड देयर विल बी व्हाट? एंडोऑस्मोसिस. देयर विल बी व्हाट? टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स, एंड देन इट विल लीड टू ओपनिंग ऑफ द स्टोमाटा. How beautifully this stomata is opened. How beautifully this theory, potassium ion pump theory. क्योंकि अंदर potash malate का concentration, solute concentration has been increased, which has led to what? Which has led to opening of the stomata. फिर again concentration कम होगा during night time, no photosynthesis. फिर वो क्या कर लेगा बेटा? what it will do, अगेन इसका कॉन्सेंट्रेशन कम, एक्सोऑस्मोसिस से श्रिंकन, फिर वो पतला हो जाएगा. तो दिस इज व्हाट इट इज सेज दैट एक्सोऑस्मोसिस ऐसे हुआ, इसी का रिवर्सल करोगे तो क्या हो जाएगा? एंडोऑस्मोसिस.
But you know, there was a scientist or a modern theory which believed कि एंडोऑस्मोसिस होने के लिए ABA इनहिबिटर, जिनको बचपन में याद होगा या फिर जिनका प्लांट हार्मोन कंप्लीट हो गया होगा, रिपीटर्स वाले, और जिनके मतलब चल रहे हैं वो आगे मेरे से पढ़ लेंगे और बचपन में पढ़ा होगा. There are few kinds of hormones which are secreted by the plant: auxins, gibberellins, ethylene acid, abscisic acid. याद आया? याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? These are the hormones. ग्रोथ हार्मोन्स बेटा, प्लांट के ग्रोथ हार्मोन जो उनके ग्रोथ के लिए रिसीवर करते थे वो सीक्रेट करते हैं, और उस एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर से ये अपनी परमिएबिलिटी चेंज करते हैं. सो लेट्स सी अनदर फेस ऑफ मॉडर्न थियरी. ठीक है, ये तो हो गई लीवाइट थियरी, एंड दिस ओनली हैपेंस, इसका उल्टा नाइट टाइम में. बट व्हाट हैपेंड, यू नो, नाइट टाइम में जब होता था, हु मॉडिफाइड इट? मॉडर्न थियरी of ABA, abscisic acid inhibitor. Modern theory of abscisic acid inhibitor modified that endoosmosis wala concept, and I'm going to teach you that. So basically these two theories are interrelated. मानते हो? ये डे टाइम में एंडोऑस्मोसिस, नाइट टाइम में एक्सोऑस्मोसिस. बट उस एक्सोऑस्मोसिस के करने के लिए एब्सिसिक एसिड की जरूरत होती है. ये मॉडर्न थियरी ने क्लियरली स्पेसिफाई किया, तो इसीलिए हम इसको दोनों मैकेनिज्म से पढ़ते हैं. तो समझ में आया? पोटेशियम थियरी टॉक्स अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. मॉडर्न थियरी टॉक्स अबाउट, yes it talks, yes exactly, Levite is same, Levite is correct, but it deals with what? It deals with abscisic acid inhibitor, and I'll show you the movie soon. After all, I'm here for what? To show you the picture. चलो बेटा देखते हैं पिक्चर क्या कहता है. ठीक है, समझ. What happens during night time? There is no sunlight. No sunlight. मानते हो? यहाँ पे क्यों हो रहा था बेटा? क्योंकि डे में सनलाइट प्रेजेंट थी, तभी ये फोटोसिंथेसिस दिखा रहा था. When there is no sunlight, will they show photosynthesis? No. Why? Because in the presence of photosynthesis, we see what? We see food. Glucose तभी बनता है जब CO2, H2O and chlorophyll along with acting of sunlight, UV rays act on it and form what? Glucose. आए समझ में? So जब CO2 जो होगा प्लांट में, उसका concentration कैसा होगा? Increase. क्योंकि CO2 never ever got converted. Was this reaction of photosynthesis? CO2 plus H2O will give you C6H12O6 plus O2 plus oxy H2O. और इस पे क्या ऐड करता था? UV rays and then sunlight. Isn't it the beautiful reaction of photosynthesis? मानते हो? बैलेंसिंग कर लेना खुद से. ठीक है, चलो आगे 6 डाल लो, फिर ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बैरी कर लो, वो सारी चीजें अलग है, कर लेना. ठीक है, चलो अब देखो बेटा. सो ये जो CO2 बाद में जब फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो ये CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा सेल में. आप लोग कहोगे यस मैम बढ़ जाएगा. फिर इस CO2 के प्रेजेंस में क्या pH बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा pH? मैम आप ऐसी वैसी बातें मत क्या करो. अरे बेटा जी बढ़ जाएगा. क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि when this carbon dioxide get combined with water, it forms H2CO3. क्या बनाता है ये? कार्बोनिक एसिड. और वो जो pH हो जाता है वो कितना होता है? 5. That pH tends to become what? That pH tends to become 5. समझ में आया बेटा? क्लियर. और जब ये pH बढ़ा, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, and then what does it says? It says what? It leads to acidic medium. That time there is a secretion of ABA inhibitor. What is this ABA inhibitor? I have told you there are different types of plant growth hormone which includes abscisic acid, ethylene and then what? Auxins, gibberellins. ये सारे plant वैसे ही abscisic acid. ABA inhibitor का full form लिखना चाहो तो लिख सकते हो. Abscisic acid inhibitor. Clear? Abscisic acid inhibitor. So what does it do? It changes the permeability of what? Of cell wall. बेटा जी cell wall freely permeable होता है. वो कैसा भी करता है. जब भी मैं आपसे permeability की बात करूँ, NR ma'am always talks about what? Cell membrane. तो it changes the permeability of cell membrane. आया समझ में? It changes the permeability of
सेल मेम्ब्रेन. व्हेन सेल मेम्ब्रेन की परमियाबिलिटी चेंज हो गई, अब देखना क्या यहां पे मैलेट आयन प्रेजेंट है? नो इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम. क्यों? क्योंकि जब हाइड्रोजन बाहर जाएगा ही नहीं, जब H+ आउट हो रहा था मैलिक एसिड में से, क्या यहाँ पे मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ? नहीं हुआ नाइट टाइम में, क्योंकि स्टार्च नहीं बना. व्हेन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड, दिस हाइड्रोजन बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता. तो क्या पोटेशियम अंदर जाएगा? सो देयर इज नो इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम. जब हाइड्रोजन बाहर गया ही नहीं तो पोटेशियम अंदर कैसे आएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा. तो नो इनफ्लक्स. फिर ये जो बट बेटा जी कुछ ना कुछ पोटेशियम मैलेट जो थे वो दिन में तो बने हुए थे ना. भले पोटेशियम रात के टाइम में बाहर से अंदर नहीं आए क्योंकि हाइड्रोजन नहीं गया, एटीपी नहीं लगी, बट क्या आपको पता है ये चीज? पोटेशियम मैलेट जो यहाँ पे बन चुके थे, ये देखिए बेटा, ये जो पोटेश मैलेट था इस पोटेशियम से, इससे ये जो बना रहा था, कैन यू कंपेयर? See how beautiful it is when this potassium malate, this malate and this potassium form potash malate. Can you see? पर ये दिन के टाइम में तो बना था ना. What happened to that? Again it got dissociated into malate and potassium. समझ में आया? जब ये पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया तो यहाँ पे इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम हुआ. क्लियर? देयर इज इफ्लक्स. क्यों? क्योंकि अब गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम बढ़ गया. पोटेशियम बढ़ गया. पहले से पोटेशियम आया नहीं. जो दिन में जो पोटेशियम मैलेट जो सिंथेसाइज किया था हमने जो सिंथेसाइज किया था ये पोटेशियम मैलेट, ये पोटेशियम और ये मैलेट, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया एंड दैट पोटेशियम टेंड्स टू गो आउट. जब वो जाना तो देन लीड्स, जब वो बाहर जाने लगा तो उसको लीड्स टू इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन. और जब पोटेशियम आयन बाहर जाएगा, नाउ देयर विल बी इन्फ्लक्स ऑफ व्हाट? कमेंट फास्ट एंड टेल मी फास्ट. आई नो यू कैन गेस इट. देयर इज इन्फ्लक्स ऑफ H+. समझ में हाउ ब्यूटीफुल. पहले बेटा जी during the time of endoosmosis H+ went out, potassium came inside, but now what it happened? Potassium went out, hydrogen came out. So there is what? Efflux of potassium. Here is what? Influx of potassium. Never ever forget this point. These are way more important for you. Questions में आपको ऐसे ही दे देगा, बोल देगा कि what? Opening of stomata occurs through influx of potassium, efflux of potassium, both, etc. None of this. What you will choose? Opening occurs through influx of potassium. Closing occurs through efflux of potassium. आया समझ में? Clear हुआ concept? Yes, because you all are my kids, okay? चलो. So this influx of hydrogen हुआ and cell become, after all cell is what? Flaccid, क्योंकि concentration, solute का concentration जा रहा है बाहर. More of ions are, when these cells are flaccid, what happens? This malate, जो potassium malate था, potassium तो बाहर चला गया बेटा. This malate forms malic acid. And this malic acid get converted into starch. During this starch, जब ये starch formation हो गया रात के टाइम में, osmotic pressure decreases. क्यों? क्योंकि malate का concentration क्या हो गया था? Decrease. When concentration pi is equals to ICRT. When concentration decreases, pressure decreases. समझ में आया बेटा? When osmotic pressure decreases, there is exoosmosis and stomata closes. Samajh how beautiful this concept is and how colorful our board is. Can you see? One side we have studied endoosmosis, this side we have studied exoosmosis, and way more precisely we have studied that. How beautifully, why do pH increases during night time? Because there is formation of carbonic acid. Carbonate ions form हुए यहाँ पर H2CO3. Clear? And this got converted. फिर इसके बाद जब pH increase होने लगा, plant growth hormone inhibitor is secreted, that is called as abscisic acid inhibitor, and it changes the permeability of cell wall. No beta, not cell wall. Tell me ma'am, it is cell membrane. You are NR ma'am's kid. तो आप लोग क्या बोलोगे? This is cell membrane. And when this cell membrane permeability changes, potassium malate get break into malate and potassium. This potassium leads to efflux of potassium. Then there is influx of hydrogen ion. जब efflux यानी पोटेशियम बाहर गया तो हाइड्रोजन आयन अंदर आया. Cells was flaccid. Due to flaccidity, this malate get converted into malic acid by acceptance of this hydrogen ion. Arrow पे देख रहे हैं. This hydrogen malic acid get converted into starch. When the starch are present, osmotic pressure decreases. When osmotic pressure decreases, concentration decreases. When concentration decreases, again exoosmosis. पानी इसका मतलब ज्यादा है, तभी तो सेल की concentration कम है.
है ना? This is what exosmosis and stomata shrunkens, flattens and close. This is what happens during the exoosmosis and endoosmosis during the closing and opening of stomata. बेटा अच्छों को नहीं आता ये चीज, ठीक है? याद रख लो, समझ लो और समझ के पढ़ना. Clear? The very beautiful concept we have studied today. Let me give you one star point. Not only this is related to opening and closing of stomata, there is a segment that is called as microfibrils, which leads to stomata open easily. I'll tell you and write that point. So, modern theory talks about closing of stomata depends upon the irreversible process of potassium hydrogen ion efflux which leads to closing of stomata. और क्या मैंने आपको यही पढ़ाया था मॉडर्न थियरी में? ये थोड़ी सी खिचड़ी हो गई है, but I know you have written my notes very properly, sorry for that, okay? So ये क्या यही था, ये था ना? So this is what modern theory talks about and which is done by ABA, abscisic acid, which is present in guard cells. इतना तो पता ही होगा आपको. You know what? I have told you one thing also, that opening and closing of stomata is also aided by orientation of microfibrils. अब क्या होता है microfibrils? अब अच्छे पन्ने पलटेंगे, सब फटाफट पन्ने पलटना और देखना क्या होता है microfibrils. I give you benefit of doubt, किसी को याद नहीं होगा, but मेरे बच्चे हो ना तो मैं याद. यहाँ पे जो एलिमेंट प्रेजेंट था इसी को हमने microfibrils कहा था, which leads to helps in opening and closing of stomata. This was our microfibrils. याद आया या सब भूल गए? ठीक है. In the cell wall of the guard cell, in the cell wall, this is present in the cell wall of the guard cell. ये हमारा cell wall मैंने आपको बताया था, inner and outer वाला. याद आ रहा है बेटा? inner वाला thick था, inner outer वाला thin था. याद आया कुछ? पिछला पन्ना पलटो, ठीक है. And the cellulose, जब ये microfibrils, when they are made up of cellulose microfibrils are oriented radially then longitudinal for easier opening of stomata. लिख लेना, for easier opening of stomata. क्योंकि stomata easily खुल सके, for easier opening of stomata, क्योंकि stomata easily खुल सके, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? Who helps it? It is done by microfibrils and they are arranged in what way? When cellular microfibrils are arranged radially. बेटा ये पूछते हैं क्वेश्चन में, आपको ये याद रखना है. ये arrangement of cell microfibrils कैसा होता है? Radially then longitudinally for easier opening of stomata. समझ में आया? That's all for today. Thank you very much. Do watch the session. Next class we will see what are the factors which affect the opening and closing. Next class we'll see what are the factors which affect the opening and closing of the stomata. What are the things which affects how do stomata opens, why do stomata close, daytime, nighttime, temperature, other more things, okay? Thank you very much. Do watch the session, complete your class, complete your sessions, make notes. If any doubt, do comment, do ask. And yes, please do a favor, do like it, do subscribe it and do share our video. And if you like it, do subscribe the channel and request others also to subscribe. This is a small courtesy to you. How do you repent to your teachers? When you really like it, you must do that. Thank you very much and have a good day. Thank you.